चेक। जेड बोल रहे हो ना, लेकिन अभी कैमरा के लिए क्या एफर्ट किया, सेटअप लगाओ, प्रेजेंटेबल बनो। गणपति बप्पा मोरया। Hi everyone, this is NZ Annavella. You all did a very good job making me happy, and thank you for celebrating my birthday so really well with your good wishes. And there were so beautiful wishes which I received after 2 years I've celebrated. And now this video is gonna be what? You must have understood with the title why we are here for. So I'm gonna be quickly grabbing this summer talk with you and the improvements of my life. Things which I have prepared, I mean just the bullets, would be all what comes into my mind. So I will speak on that because it's about me and my topic. I wanted to do this topic. So let's get hydrated. This video is all about what all I have learned after my birthday. Before my birthday, I have started it and I'm still keeping it for my life lesson. So the first things first I have started is 3-second rule. So in this, what I have started earlier, I used to be very lethargic person. If something is kept that side or this side in this room or that room, if I see that and I used to delay that work, हो जाएगा यार, बाद में कर दूंगी यार. Eventually I used to do that. I used to like get energized and do everything at once. But that actually does not simplify your life is what I understood. So now the 3-second rule is NZ, just wake up, there's a glass of water, just pick it up and keep at the sink, or maybe if it's to be washed, keep it there. Or if there is a tree, I mean I have some planters that's lying, fallen, if there is something messy, so I just go grab that 3 second is very important for you to get the work done, and that's what I've learned. I know आपको ये बहुत छोटा सा लग रहा होगा कि अरे ये क्या सिखाने आ रही है, लेकिन एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा होता था. एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन इफ दे आर वेरी मोनोटोनस विद देयर वर्क एंड दे आर एबल टू डू वर्क ऑन टाइम, देयर आर सम टाइम्स where we get lethargic. यार come on, don't tell me कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता होगा, because if you are not facing this, you must be lying about it. जेड बोल रहे हो ना, तो ये चीज मैंने सीखी है. अभी जैसे कि आप छोटी सी एफर्ट देख लो, बहुत लो एफर्ट है. अगर मैंने ये वीडियो बनाना है, उसके पहले मैंने कितना लेजीनेस फील किया होगा, राइट? बिकॉज इफ देयर इज अ कैमरा, इफ यू हैव टू स्पीक एक्चुअली, सो डिफरेंस आ जाता है. क्योंकि अगर मैं रैंडमली बात करती हूँ तो मुझे रैंडमली इतना ज्यादा नहीं एफर्ट लगाना पड़ता है, बिकॉज आई एम टॉकेटिव, मैं बात कर लेती हूँ. लेकिन अभी कैमरा के लिए क्या एफर्ट किया, सेटअप लगाओ, प्रेजेंटेबल बनो, सब अच्छे से लाइटिंग वगैरह है कि नहीं चेक करो, एंड बेसिक एफर्ट. ठीक है, तो उसके लिए क्या लगा, एनर्जी लगी. वो 3 second रूल लग गया मुझे वहां पे कि वो मेरे को 2 दिन पहले ये वीडियो बनानी थी. ठीक है, बट मैं 2 दिन से इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि सैटरडे संडे आ गया बीच में, बहुत सारे मतलब फैमिली टाइम हो जाता है, उस टाइम नहीं बन पाया. लेकिन फिर मैंने सोचा, अभी भी मैं वेट कर रही थी कि देयर वुड बी आफ्टरनून लाइट, मैं उस टाइम बैठ के वीडियो बनाऊंगी. आज लाइट नहीं है आफ्टरनून का, आज थोड़ा सा क्लाउडी है, ग्रे है. लेकिन something in me which have changed is now I can feel. Yay! Clap for me at least in the comment section. I know तुम बहुत ज्यादा ब्लैबर नहीं करने वाले होगे, लेकिन अब से तुम लोग शुरू कर आदत डाल दो मेरे कमेंट्स में ब्लैबर करने की, क्योंकि मैं कमेंट रीड करना शुरू कर गई हूँ. गाइस, दिस इज सो न्यू फॉर मी because I was somebody who was a failure in replying. I mean, मैं रिप्लाई कर देती हूँ लेकिन मुझे बहुत बोर होता है यार, टेक्स्ट करने में बोर होता है. I love speaking. I love समझ गए ना? Alright, so the next point is I've started earthing barefoot on grass. What does it mean is, मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने अपने मेरे मूलांक पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ. मेरे हैपनिंग्स ऑफ माई लाइफ, जो कुछ भी हो रहा है, आपने मुझे देखा होगा इसके पहले वाले वीडियोस में, नहीं देखा तो देखो. बहुत सारी चीजें हुई है मेरे लाइफ में जो मुझे अब फील होता है कि there is something I need to do about it, and was just hunting for a solution, and I got that solution in my head also, I mean in my brain and mind, within myself. And I have seen that practically also somewhere written, and I just found that some video popped up onto the screen. I realized कि मुझे अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. अर्निंग means I wake up at 4, I get my basic routine done, I go out on a grass barefoot earthing. So what earthing helps you actually in? It reduces my nervous system. My sleep patterns have improved. Oh my god, I was dealing so bad with this sleep. क्या हो जाता है मुझे 15 दिन के अंदर, इतने फ्लक्चुएशंस एंड वेरिएशंस हो गए हैं ना. इतने फ्लक्चुएशंस को मैं कैसे स्टेबलाइज करूँ? I was struggling with that to find an answer.
सो ये मेरे को स्लीप में हेल्प किया। स्लीप उस पैटर्न मेरा बहुत बेटर हो रहा है, टच वुड बाबा। मेरी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया। आई कैन फील द चेंज इन माई बॉडी एंड माई एनर्जी। इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑल्सो एंड स्ट्रेस काम करता है, नर्वस सिस्टम काम करता है। बहुत सारा अच्छा पैटर्न है। आई साइट के लिए मैंने कहीं पे रीड किया हुआ था, आई साइट इम्प्रूव होता है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम कि मेरी आई साइट भी इम्प्रूव हो जाए गाइस, क्योंकि इसके पीछे का एक साइंस है गाइस। व्हेन योर फीट इज टच्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड और द अर्थ, दैट वाइब्रेशन हेल्प्स इन योर बॉडी अ लॉट. You can go and read about it. I am reading about it. I don't want to stretch that topic. कभी बात करेंगे उस बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. यू शुड ट्राई एज वेल. द नेक्स्ट पॉइंट इज आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी टू प्लीज पीपल. दैट एनर्जी आई हैव टेकन इनवर्ड्स बैक टू मी. द एफर्ट्स एंड द अमाउंट ऑफ टाइम आई यूज टू स्पेंड फॉर पीपल, टू पीपल, विद पीपल. डेमोक्रेसी नहीं है ये, आई नो, लेकिन वो एनर्जी को मैंने अब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है. इसीलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल पा रही हूँ. आई कैन पुट सम एफर्ट इनटू इट. अभी भी मैंने वीडियो बनाने के पहले कुछ बहुत ऐसा काम करके आई हूँ कि आई वाज जस्ट गेटिंग प्रेप्ड फॉर इट. बट मुझे मेरे भाई को खाना देना था एंड ही इज नॉट वेल टुडे. ही इज फेसिंग अ लूज मोशन. बट मैं उसको उठा के खाना गर्म करके देकर बनाकर आई हूँ. जस्ट इमेजिन कि आपको वीडियो बनाने का एक मोमेंटम है अभी, या फिर एक अपना काम करने का मोमेंटम है अभी, लेकिन उस बीच में कोई एक इंटरप्शन आ जाए. वो कैसा लगता है ना, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है. देन वी जस्ट गेट बैक टू आवर प्रीवियस सेल्व्स. बट आई पुश्ड माई सेल्फ कि नो. नेक्स्ट इज डीक्लटरिंग स्मॉल स्पेसेस. मतलब मैं पहले से भी ऐसा करती आई हूँ कि आई यूज्ड टू डीक्लटर माई होम अ लॉट, बट अब मैंने कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया. मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी समथिंग इज अनवांटेड, आई डोंट वांट इट, आई फील दैट आई एम जस्ट वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट बट देयर इज नो यूज ऑफ इट, आई स्ट्रेट अवे थ्रो दैट इनटू बिन. तो मतलब अब मुझे काफी अच्छा लगता है. एंड ये वास्तु के हिसाब से भी, इफ यू बिलीव इट, ये अच्छा होता है. डीक्लटरिंग योर होम. Unnecessary spaces are occupied because of that energy, so that gets heavy. You need to declutter as well. If you are facing a lot of mess in your life, just declutter your home. See that how relaxing it feels to you. So I'm very excited to be in this journey. अगर आपको भी लगता है कि ये points आपको help कर सकते हैं, you should definitely imply. And yes, मुझे comment section में drop करो कि आप अपने life में ऐसा क्या करते हो जो आपने किया है और आपको वो help करने में improve करता है. और हाँ, यहाँ पे मेरी वीडियो चली गई थी. एक और point रह गया था कि I've started learning new skills intentionally every week. तो ये भी मैं बता रही थी. और हाँ, ये बात जरूर शेयर करना कि आपके अंदर ऐसा क्या point आपने डाला है जो अभी आप imply करते हो और वो आपके लिए यूजफुल है, ताकि मैं भी उसे यूज कर सकूं अपने पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने में. एंड वी कैन बिल्ड अ गुड कम्युनिटी टुगेदर. सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट. वी विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. और हाँ, ड्रॉप कर देना अपने आइडियाज कि आप मेरे से और क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो और मैं आपको हेल्प करूंगी. बाय बाय.